السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ بفضلہ تعالی ہم بنی ہوئے انسان کے اوپر اللہ رب العالمین کی بے شمار انعام و اکرام ہیں، اور اس کی بے شمار نعمتوں میں سے یہ ایک عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ہدایت یافتہ بنایا، اور اس ہدایت یافتگی کی زندگی کے بعد یہ بہت بڑی بات ہے اور ایک عظیم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کا پابند بنایا۔ یقیناً اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اس پر اللہ رب العالمین کا ہمیں اور آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس طرح تمام ان لوگوں کو بھی جو کسی نہ کسی ذریعے سے اس پروگرام سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جس طریقے سے نے اسلام کی حالت میں زندہ کیا، جب ہماری تو موت دے تو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے، آمین رب العالمین۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 172 سے آگے جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی و منشا ہو، ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے، حق بات سننے، اور ان سب سے بڑھ کر تو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 172 کے اندر بیان کیا، الذین استجابوا للہ والرسول، جن لوگوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو قبول کیا، من بعد ما اصابہم الکرہ، بعد اس کے کہ ان کو پورے زخم لگ چکے تھے۔ اصل میں یہ واقعہ جنگ احد ہی کے تعلق سے ہے کہ پورے زخم لگ چکنے کے بعد بھی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو قبول کیا، وہ کیا حکم تھا؟ زخم لگنے کے بعد بھی حکم آیا، کیا معاملہ تھا، ماجرا کیا تھا؟ پورا واقعہ جو تفسیر کی کتابوں کے اندر بیان کیا گیا کہ وعلیکم السلام، یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو، یا جو جنگ احد کا رزلٹ ہے وہ نہ فتح ہے نہ شکست، ڈرو ہے نا، ٹائی جس کو بولتے ہیں۔ اب مسلمان احد کے میدان سے جنگ کے خاتمے کے بعد مدینہ جانے لگے، ادھر کفار کی ٹیم جو تھی وہ مکہ جانے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ ہم لوگ فتح کی صورت میں نہیں لوٹ رہے ہیں، ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں مدینہ پہنچنے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ ہم لوگ ابھی فتح حاصل کر کے نہیں لوٹے ہیں، یہ تو داؤ الٹا پڑ گیا۔ جیت رہے تھے، پھر بعد میں اس طرح کا معاملہ ہو گیا تیر اندازوں کی طرف سے، اور تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے کہ یہ جنگ جو ہے نہ فتح تھی نہ شکست تھی، ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات اور یاد رکھیے، کیونکہ آپ پوری انسانیت میں سب سے بہتر انسان ہیں اور ہر اعتبار سے بہتر تھے، سیاسی اعتبار سے بھی بہتر تھے، جنگی اعتبار سے بھی بہتر تھے، ایک کمانڈر کی حیثیت بھی بہت اونچا مقام رکھتے تھے، تعلیمی میدان میں بھی آپ آگے تھے۔ معاملہ یہ ہوا کہ ان کو محسوس ہوا کہ جس حالت میں ہم لوٹے ہیں، کہیں نہ کہیں دشمن کے دماغ میں یہ بات چل رہی ہوگی کہ مکہ نہ جا کر الٹا مدینے پر حملہ رکھ کر دیں، کیونکہ مسلمان پست ہیں،
खस्ताहाली के शिकार है, अभी वो हार जैसा ही महसूस कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंट लेवल गिरा हुआ है, क्यों ना अभी उनको कुचल दिया जाए, ताकि मदीने के अंदर जो इस्लाम का पौधा उग रहा है उसको उगने से पहले ही डुबो दिया जाए। ये चीज अल्लाह के रसूल के ज़हन में आई और रसूल ने कहा कि अभी कोई अपने घरों बना जाए, एक काम करो, हम लोग मोर्चा संभालो, मुझे लग रहा है कि इस तरह की बात हो, मोर्चा अभी भी संभालो और आगे बढ़ो, मदीने से बाहर निकलो, जंग अभी खत्म नहीं हुई। अब मुसलमान एक तो अपनों को खोने के गम में थे, दूसरी एक उनके दिमाग में टेंशन जहनी तौर पर थी, वो ये थी कि हम जीती हुई बाजी हार गए। तरह तरह की परेशानियां उनके जहन में उनके दिमाग में थी, है ना। ऊपर से अल्लाह के मिशन का हुक्म आ गया। ये एक देखिए जहनी तौर पर एक इंसान कैसे अपने आप फ्यूट रख सकता है और रखने की कैसी कोशिश कर सकता है कि एक थका मांदा अभी हम मैदान जंग से वापस ही लौटे, फिर ऑर्डर हो गया कि नहीं आप मोर्चा संभालें, तो ये तो चिड़चिड़ाने वाली बात है ना। अगर हम और आप होते हम जिससे हम लोगों की मिजाज है तो हम तो चिड़चिड़ा जाते, लेकिन सहाबा देखिए कैसे अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करते थे। फौरन सहाबा जो वहां से निकले और लश्कर फिर लौटे वापस गए और करीब करीब 8 मील के दूरी पर डेरा डाला मुसलमानों ने। सेम वही चीज हुआ, मक्का के सरदारान लौट रहे थे, उन्होंने भी अपने काफिले को रोक दिया, कहा कि देखो अभी मोहम्मद परेशान है, क्योंकि तो फौज जो है अभी जो है क्या है कि वो देवी तौर पर परेशान है, अभी अटैक कर देते, बात का मामला ही नहीं रहेगा, खात्मा ही कर देंगे और जो है सर उठ रहा है उसको कुचल दिया। जो चीज अल्लाह के नबी ने सोचा उसी दुश्मन भी सोच रहे थे। इसी को कहा जाता है एक बेहतर कमांडर, समझे ना, एक बेहतर कमांडर जो जनरल जिसको बोलते हैं, उन सब चीजों को सोचता है, उसी के बारे में अल्लाह ने यहाँ बयान किया। और जो है हमराउल असद की जगह एक मकाम है हमराउल असद, वहां पर मुसलमानों ने डेरा डाला, जो मदीना से 8 मील के फासले पर डेरा डाला कि अगर अटैक हुआ तो यहाँ से हम लोग समझ गए। ये एक क्या है, दुश्मन को कंफ्यूज करने का भी तरीका है। अब दुश्मन क्या सोच रही है कि मुसलमान अभी हालत बहुत खराब है उनकी और बहुत शर्मिंदगी की हालत में लौटे हैं, वो तो घबराए और डरे होंगे और सदमा भी है, उनके बहुत से लोग मारे गए, शहीद कर दिए गए फौज में। अगर अटैक करते हैं तो जो भी बचा कुचा खत्म हो जाएगा, लेकिन उनको नहीं पता था कि मुसलमान अभी भी फ्यूट है। और वही हुआ जब इन लोगों ने सोचा कि अटैक कर देते हैं, और जब वापस ये गए तो देखकर हैरान हो गए। हमें लगा कि हम हमला कर देंगे और जो भी बचा कुचा है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन हैरान हो गए कि नहीं, ये तो हमारी सोच से ऊपर है, और फौरन वो भागे वहां। उसी के बारे में अल्लाह यहाँ बयान कर रहा है कि अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूली, और जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल की हुक्म को कबूल किया, मिन बादी मा असाबहुमुल कर, बाद इसके कि उनको पूरे जख्म लग चुके थे, जख्मी होने के बावजूद भी मोर्चे पर खड़े हुए। क्यों खड़े हो गए? क्योंकि अल्लाह का हुक्म था और उसके रसूल का हुक्म था, हुक्म कोई आम शख्सियत का नहीं। आगे लाने का लिल्लज़ीना अहसनु मिनहुम, उनमें से जिन लोगों ने हुस्न सुलूक किया, अच्छाई का काम किया, अच्छे काम किए, नेकी के काम किए, वत्तकू और तकवा बरती, परहेजगारी बरती, मतलब डरते रहे अल्लाह से, अजरुन अजीम, तो उनके लिए बहुत बड़ा अजर। अब यहाँ देखिए दो चीज के बारे में अल्लाह ने कहा कि लिल्लज़ीना अहसनु मिनहुम, उनमें से जिन लोगों ने नेकी की, वत्तकू और परहेजगारी बरती, परहेजगारी इख्तियार किया, अजरुन अजीम, ऐसे लोगों के लिए बड़ा अजर है। वो चीज हम लोगों के लिए भी है, दर्जी या आयत ओहद के मुजाहिदों के लिए, लेकिन इसके जुमरे में हम भी आते हैं, इस कैटेगरी में। अगर आज के जमाने में हम और आप भी नेकी बरतें, नेकी के काम करें, अच्छाई के काम करें, भलाई के काम करें, है ना, फिर मतलब भलाई और उसके सुलूक का काम करें, वत्तकौ और तकवा इख्तियार करें। असल में देखा जाए तो इंसान जितना अमाल करता है, हम और आप जो मुसलमान जितने अमाल करते हैं, उस अमाल को जो है ना, आदमी कहता है कि इमाम साहब कंफ्यूज हो जाते हैं, नमाज शुरू करते हैं 2 दिन ठीक पढ़ते हैं, जो है ना अजीब मन करता है तो छूट जाता है, मिस हो जाता है, और जो है तो हम ढीला कमजोर पड़ जाते हैं, है ना, अक्सर शिकायत रहती है। सिर्फ नमाजी के नहीं, और भी दीगर चीजों में, चाहे रमजान का रोजा हो, चाहे नेकी का काम हो, चाहे सह के काम हो, चाहे सदका, चाहे भलाई के काम हो, तो अक्सर देखिएगा हमारे भाइयों की शिकायत रहती है कि शुरू में एक दिन ठीक रहता है, बाद में हम पर ढीले पड़ जाते हैं। वजह क्या है? तो कहने का मकसद ये है कि जितनी भी आमाल है हमारे सालिहा नेक आमाल, वो नेक आमाल कैसे किए जाएंगे, उसका निचोड़ है तकवा।
आप अपने दिल में अल्लाह का डर बसा लीजिए, है ना, अपने दिल में अल्लाह का डर बसा लीजिए, तो याद रखिए कि आपका मन कभी नहीं उठता है, कभी नहीं घबराएगा, है ना। बहुत सारे हमारे भाई नमाजी हैं, 20-30 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, कभी नहीं उठता है, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं? वो भी तो इसी दौर में रह रहे हैं, वो भी 2024 में जी रहे हैं, यही जिंदगी गुजार रहे, यही माहौल में रह रहे, कैसे पढ़ रहे हैं? सोचे, वो नहीं उठता है, हम कैसे उठता है? इसकी एक बुनियादी अगर वजूहात देखेंगे, एक वजह क्या है? तकवा। हम ये सोच लें कि अल्लाह हमें देख रहा है, नेकी को भी बुराई को भी, ये अगर हम कंफर्म कर ले, उसी को तकवा कहते हैं, अल्लाह का खौफ। अगर हम कंफर्म कर लेते हैं तो याद रखिए कि उकताहट की बजाय और चुस्ती फुर्ती आ जाएगी, चलो और अच्छा करने की जरूरत है। देखिए, इबादत में इबादत दो तरह की होती है। जो हम इबादत करते हैं ना, उसको दो हिस्सों में, दो भाग में, दो पार्ट में हम तकसीम कर सकते हैं। एक इबादत हम करते हैं अल्लाह की मोहब्बत, करते कि नहीं करते? हमको अल्लाह से मोहब्बत है, नमाज पढ़ते हैं, है ना, अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह से मोहब्बत है। हमको अल्लाह से मोहब्बत है, हम रमजान का रोजा रखते हैं, अल्लाह ने कहा रमजान का रोजा मुसलमानों के ऊपर फर्ज है, तो हम रोजा रखते हैं। यानी जितनी भी नेकियां हैं, मुसलमान या तो अल्लाह की मोहब्बत में करता है, और दूसरा है या तो अल्लाह के खौफ से, दूसरा या तो अल्लाह के खौफ से। उर्फ़े आम में उमूमी तौर पर हमारे और आपके माशरे में ज्यादातर इबादत हम अल्लाह की मोहब्बत में तो करते हैं, लेकिन अल्लाह के खौफ से हम बुराई नहीं छोड़ते। तो समझिएगा तो बोलने का मकसद क्या है। हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, अल्लाह की मोहब्बत है, रोजा रख रहे हैं, अल्लाह की मोहब्बत है, दस में अल्लाह की मोहब्बत है, उसकी मोहब्बत से हम आए हुए ताकि इसके जरिया से अल्लाह हमारे कब्र में नूर भर दे। मरना तो सभी को है, हो सकता है ये हमारी सत्य जारिया बन जाए, है कि नहीं? हो सकता है, क्या बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो एक चीज तो कर रहे हैं अल्लाह की मोहब्बत में, लेकिन अल्लाह के खौफ से हम गुनाह नहीं छोड़ते। यहाँ पे हम जो है हमारा प्लस पॉइंट जो है माइनस में चला जाता है। सूरह सबा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि नब्बी इबादी है, कुल नब्बी इबादी है, नबी आप मेरे बंदे को खबर कर दीजिए, बता दीजिए, खबर दे दीजिए क्या? कि अन्नी अनल गफूरुर रहीम, कि मैं गफूरुर रहीम हूँ, बख्शने वाला हूँ, रहम करने वाला हूँ, मेहरबान हूँ अपने बंदों के ऊपर। कुल नब्बी इबादी, ऐ नबी मेरे बंदों को बता दीजिए। जाहिर बात है, अल्लाह को माने अल्लाह के बंदे होंगे, तो अल्लाह को नहीं माने बंदे नहीं होंगे। इस आयत में अल्लाह ने कहा कि ऐ नबी आप बतलाइए अपनी उम्मत को, अपने सहाबा को, अपने लोगों को, मुसलमानों को, कि अन्नी अनल गफूरुर रहीम, कि बेशक मैं बख्शने वाला, रहम करने वाला हूँ। और एक बात बता दी, अगली आयत में अल्लाह ने कहा, क्या कहा? ये भी खबर दी दीजिए कि अन्ना अजाबी, कि बेशक मेरा अजाब जो है, अजाबुल अलीम, दर्दनाक अजाब। दोनों बात बता दीजिए। ए नबी मेरे बारे में बताइए कि ऐ मुसलमानों, जहां तक अल्लाह गफूर रहीम है, वहां तक अल्लाह दर्दनाक अजाब देने वाला भी है। अल्लाह ने सिर्फ जन्नत नहीं बनाया, अल्लाह ने बल्कि जहन्नम भी बनाया है। ये कैसे स्किप कर देते? अब होता क्या है आमतौर पर हमारे मुआशरे में कि एक चीज को लेकर हम चलते हैं, दूसरी चीज पर ध्यान नहीं देते, तो हो क्या रहा है कि प्लस माइनस में चल जा रहा है, प्लस हो रहा है, लेकिन माइनस में चल जा रहा है, प्लस हो रहा है, लेकिन माइनस में चल जा रहा है। हम प्लस के बाद ये फिक्र में रहेगा माइनस का, ये होगा समझदारी की बात। यहाँ पे वही बात बयान किया। तो इबादत हम इसी करें, जहां पर अल्लाह की मोहब्बत में इबादत कर रहे, उसी तरह अल्लाह के खौफ में हम गुनाह छोड़ दें। पता है कि नहीं? इसी हम नमाज भी पढ़ रहे, झूठ बोल रहे हैं, हम नमाज भी पढ़ रहे, गिबत भी कर रहे हैं, हम नमाज भी पढ़ रहे, चुगली भी कर रहे हैं, हम नमाज भी पढ़ रहे, सूद भी खा रहे हैं, हम नमाज भी पढ़ रहे, तो भाइयों में दरार पैदा कर दे रहे हैं, हम नमाज भी पढ़ रहे हैं और बुराई के सारे काम कर रहे हैं, जिना भी कर रहे हैं। ये तो इबादत तो नहीं हुआ। एक मोहब्बत में अल्लाह की मोहब्बत की इबादत करें और एक अल्लाह के खौफ से गुनाह को छोड़ दें, ये कंप्लीट इबादत हुआ। अब अगर कोई बंदा ऐसा करता है तो अल्लाह ने कहा कि लिल्लज़ीना अहसनु बिल, ये हम लोगों के लिए भी, तो उनमें से जिन लोगों ने नेकी का काम किया। अब अल्लाह ने कहा वत्तकू, और परहेजगार रहे। तो दो चीज, एक दिमाग में ध्यान घुसा लें कि हमको हर हाल में अल्लाह ताला से डरना है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, सही बुखारी की रिवायत है कि इत्तकिल्लाह, जहां कहीं भी रहो अल्लाह से डरते, जहां रहो, उम्र की जिस दहलीज पर, जिस स्टेज पर रहो, पढ़ाई के जमाने में रहो तो अल्लाह से डरो, कमाने के जमाने में रहो तो अल्लाह से डरो, शादी के बाद की जिंदगी, बुढ़ापे के आ जाए तो अल्लाह से डरो। हर हाल में जहां कहीं भी रहो अल्लाह से डरो।
ये डरना क्या कहता है? तकवा कहलाता है। तो अल्लाह ने कहा कि अगर किसी के भी अंदर नेकी और तकवा आ जाए तो उसके लिए बहुत बड़ा अजर है। अजर अजीम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है। बोल नहीं था कि अगर दर्द थोड़ा आगे चले लेट हो तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम में आ जाना है तो कोई मसला नहीं है। अब आगे अल्लाह ने बयान किया आयत नंबर 173 173। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लज़ीना क़ाला लहुमुन नासु इन्नन नासा क़द जमअू लकुम फख्शौहुम। बेशक इन लोगों ने कहा और लोगों ने उनसे कहा क़द जमअू लकुम, दुश्मन तुम्हारे लश्कर जमा कर। वही खबर मक्का वाले मक्का जा रहे थे दुश्मन यानी काफिर मुशरिकीन, उन लोगों ने वही चीज सोचा तो अल्लाह ने सोच चुके है ना कि अभी मुसलमान घबराए हुए डरे हुए अभी अटैक कर देंगे तो निस्तो नाबूदी कर देंगे। तो लोगों ने खबर दिया, क्या खबर दिया? किनको खबर दिया? सहाबा को खबर दिया। खबर दिया कि कद जमाऊ लकुम, ये तो तुम्हारे लिए लश्कर जमा कर रहे, इकट्ठा कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं पूरा तो दोबारा अटैक करने के लिए। फख्शौहुम, तो तुम उससे डरो। ये सब मुनाफिकीन थे जो मुसलमानों में अब्दुल्लाह इब्न उबई के चेले चपाटी थे तो मुनाफिक बनकर मुसलमानों में घुसे। फख्शौहुम, डरो उनसे। अभी तुम जख्मी होकर आए हो, आराम भी नहीं किए, जख्म भी नहीं भरे और फिर वो लश्कर तैयार का खबर मिली है अटैक होने वाला है। फख्शौहुम, तुम उनसे डरो। ये चीज देखिए हमारे माशरे में भी होती है। क्या आता है कि एक होता है मुस्बत सोच जिसको पॉजिटिव थिंक होता है, एक होता है मनफी सोच नेगेटिव थिंक। एक बात याद रखिए, अपना दोस्त अपना साथी ऐसे लोगों को हमेशा बनाए जो पॉजिटिव सोचते हैं, इससे आपको बहुत फायदा मिलता है। नेगेटिव सोचने वाले तो खुद तो बर्बाद होंगे, आपको भी बर्बाद कर देंगे और आपको सिर्फ बर्बादी नहीं करेंगे, आपके ईमान को खराब कर देंगे। नेगेटिव बोलते हैं बहुत दूर रहिए, आपको पता चल जाएगा। आप कभी किसी चीज मशवरा लेकर देखिए, आपको पता चल जाएगा वो हमारा दोस्त नेगेटिव सोचता है कि पॉजिटिव सोचता है। एक आदमी डर की जिंदगी जीता है, हर चीज में डर रहा है, हर चीज में डर रहा है ना। ये दुनिया कभी भी बुज़दिल की कदर नहीं करती, बात याद रखिए। दुनिया अगर कदर करती है तो बहादुर की कदर करती है। बहादुर वो होता है जो रिस्क लेता है। नफा नुकसान अल्लाह के हाथों में है, कोशिश तो हमारे हाथ में है ना। अब देखिए मुनाफिकों ने कहा अरे तुम्हारे लोग तो लश्कर तैयार कर रहे हैं, पक्ष उससे डरो। तो ये अच्छी सोच थी कि गलत सोच? बताइए। नेगेटिव सोच थी, डरा दिया। लेकिन सहाबा का क्या मामला था? फज़ादहुम ईमाना, तो उनका ईमान और मजबूत हो गया, बढ़ गया ईमान। डरे क्यों? डरे क्या वो खुदा है नौज़ बिल्लाह, तो क्या कर लेगा? हमने अल्लाह पर ईमान लाया है तो हमारा मुहाफिज अल्लाह ताला है। सहाबा ने क्या किया? सहाबा के ईमान को अल्लाह ने बयान किया फज़ादहुम ईमाना, बजाय इसके कि सामने की अपोजिशन पार्टी कह रही कि डरो, फज़ादहुम ईमाना, उनके ईमान तो और बढ़ गया। देखिए उन्होंने क्या कहा? कालू, और उन लोगों ने कहा, कालू जमा कैसे है? उन लोगों ने कहा हस्बुनल्लाह, अल्लाह हमारे लिए काफी है। तुम डरने की बात कर रहे हो, सुनो, हस्बुनल्लाह, हमारे लिए अल्लाह काफी है। व निअमल वकील, बेहतरीन का साथी, ऐसा वैसा काफी है, ऐसा वैसा काफी है। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, कुरान कह रहा है कि जो कोई अल्लाह पर भरोसा करेगा अल्लाह उसके लिए काफी है। ये ऐसी सोच, तो ये एक नेगेटिव थिंक दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि ईमान और बढ़ के, समझ गया कि तो डरपोक आदमी है, डरपोक आदमी है। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसी बात नहीं, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। ये वो जुमले हैं कि हकीकत में अगर आप प्रैक्टिकल जिंदगी में नेगेटिव वालों को बता दें तो काफ जाएंगे, मतलब ये हमारे खाते में नहीं फंसने वाला, नहीं आने वाला। हमेशा पॉजिटिव रहे, मुस्बत लोगों को अपना साथी बन जो आपको सही मशवरा दे सके। डर की जिंदगी जीने से क्या फायदा? एक बार तो मरना ही, मरना तो है ही, बचना तो है नहीं। अब आगे अल्लाह ने बयान किया आयत नंबर 174 174 में, फनकलबू बिनिमतिन मिनल्लाहि व फज़ल, बस वो मुसलमान व सहाबा लौटे, मदीना लौटे। ये लोग तो जब मक्का से वापस आए अटैक करने के लिए तो दूरी से देखकर भाग गए। बोले जा, हम सोच रहे थे कि पीछे से अटैक कर देंगे, घबराए डरे हुए जख्मी है, तो पहले ही से ताक लगा बैठे हुए हैं, चलो निकलो फौरन। किस्मत बार बार साथ नहीं देती, बहुत ने साथ दे दिया, अब नहीं देगी, चलो निकलो। निकल गए, भागे वहां से मक्का। अभी जो 8 मील के फासले पर थे मदीना से, हमराउल असद की जगह एक मकाम है। अब बात जगह पे आया कि
बद्र सोगरा भी नाम था उस जगह का नाम, जहाँ पर मुसलमान घाट लगा कर बैठे हुए थे। अब जब वो वापस चले गए दुश्मन मुशरिकीन मक्का, फनकलबू, तो मुसलमान लौटे मदीने की तरफ। फनकलबू बिनिअमतिन मिनल्लाह, अपने अल्लाह की नेमत के साथ लौटे, वो फजल, और उसके फजल के साथ। अल्लाह की नेमत क्या थी? सलामती। या नेमत से मुराद क्या है? सलामती। अल्लाह ताला की सलामती लेकर लौटे, सलामती के साथ आ गए, कुछ नहीं हुआ, घात लगा पहले से बैठे हुए। फजल और अल्लाह का फजल लेकर लौटे। यहाँ फजल से मुराद क्या है? नफा, फायदा। हुआ क्या असल में कि बदर सुगरा या हमराउल असद के मकाम पे जहाँ लोग डेरा डाले हुए थे मुसलमान सहाबा इकराम, वहाँ एक काफिला, तिजारती काफिला वहां से गुजर रहा था। अब काफिले को क्या पता है क्या होने वाला है, अपना सामान लेकर मक्का जा रहा था, वही रास्ता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा काफिले को रोको, और जितना तिजारती सामान था अल्लाह के रसूल ने खरीद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा सामान खरीद लिया। अब खरीदने के बाद उसको बेच भी दिया, मुनाफा कमाने, खरीद भी लिया और बेच भी, अल्लाह ने फायदा दिया ना, खरीद भी लिए और बेच भी दी। उसी को अल्लाह ने जिक्र किया कि मिनल्लाह व फजल, और फजल लेकर लौटे, यानी अल्लाह ताला से नफा लेकर लौटे, नुकसान लेकर वहां से वापस नहीं हुए। क्योंकि मदीना ट्रेड सेंटर माना जाता था उस जमाने में, मक्का ट्रेड सेंटर माना जाता था। पूरी दुनिया से लोग अपने सारे सामान को लेकर मक्का के अंदर आते थे और अपने सामान को फरोख्त करते थे, बेचते थे। वो काफिला वहीं जा रहा था। इससे पहले तो मेन मंडी में पहुंचे, पहले खरीद लिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ऐसा नहीं कि तलवार के नोक पर खरीदा, आपको जो चाहिए वो पैसा हम नहीं करेंगे, मजबूर नहीं करेंगे। और उसके बाद अल्लाह ने बरकत अता फरमाई इसके अंदर, और मुनाफा लेकर लौटे। लम यमससहुम सून, उनको कोई किसी की तकलीफ नहीं पहुंची, बुराई नहीं पहुंची। सहाबा को जो थके मान देते जंग से वापस आए थे, फिर जंग में चले गए, अल्लाह ने कहा कि उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ और बुराई नहीं पहुंची। फिर अल्लाह ने कहा वत्तबउ रिज़वानल्लाहि, और इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की रज़ामंदी की इत्तिबा की। सहाबा ने इत्तिबा किसकी की? नबी ने कहा कि चलो फिर चलते हैं, हमको डाउट है कि लोग फिर अटैक करेंगे। और एक बात याद रखिए कि नबी अपनी तरफ की बात नहीं करते, पूरा नजम है ना, वमा यंतिकु अनिल हवा, नबी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कोई बात नहीं करते। इन हुआ इल्ला वही युहा, जो उनके तरफ वही की जाती है नबी वही बात करते हैं। यानी इनडायरेक्टली सही हदीस भी अल्लाह का कलाम, जो हदीस अल्लाह नबी ने बयान किया, नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। ये ऐसे नबी थे कि जब से नबूवत इनको मिली, नबूवत मिलने के बाद से जो वफात तक उनकी जुबान से जो कुछ निकला वो अल्लाह ने निकलवाया। जो मसले मसाइल बयान किए गए, नमाज 5 वक्त की होगी, जोहर में फर्ज नमाज 4 रकात की होगी, असर में 4 की, ये कहा अल्लाह के नबी ने, लेकिन कहलवाया किसने? अल्लाह ताला ने कहलवाया। इसलिए ने कहा कि इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, तुम चाहते हो कि अल्लाह की मोहब्बत तुमको मिले तो नबी की इत्तिबा करो, क्योंकि अल्लाह अपनी सारी बात नबी से बुलवा है, सारी बात नबी की बात माने इन लोगों ने, तो इन्होंने वत्तबउ रिज़वानल्लाह, अल्लाह ने कहा इसलिए इन सहाबा इकराम ने अल्लाह की खुशनुदी की इत्तिबा की, अल्लाह की रज़ामंदी की इत्तिबा की। क्यों? अल्लाह का हुक्म था कि चलो वापस चलते लड़ने के लिए, और चलिए, जरा भी हिचकिचाए नहीं। फिर अल्लाह ने कहा वल्लाहु ज़ू फज़लिल अज़ीम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत बड़ा, बहुत अजीम फजल वाला है। जाहिर सी बात है, सारे किस्म के जो फजल हमें और आपको मिल रहे हैं वो अल्लाह ही दे रहा है, अल्लाह के अलावा तो कोई है जो हमें नवाज दे। आज हमारे पास जो कुछ भी है, जिसको हम अपनी मिल्कियत समझते हैं, अपनी मिल्कियत से पहले ये माने कि अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ना देता तो हमारी कोई काबिलियत काम नहीं आती। काबिलियत है लेकिन अल्लाह की मदद नहीं, तो क्या आप कुछ पा सकते हैं? कभी नहीं पा सकते। इसीलिए मेरे भाई एक बात याद रखिए, आप लोग नौजवान है, बहुत मतलब ऐसा होता है ना, कुछ लफ्ज ऐसा इस्तेमाल कर देते हैं जिसके बारे में पता ही नहीं करें, बहुत ही बुरा लफ्ज इस्तेमाल किया, समझे ना? वो चीज क्या है? अल्लाह से दुआ है कि जो मेरे भाई अभी बेरोजगार है, अल्लाह को बेहतरीन रिज़्क अता फरमाए। मेरी हमेशा दुआ रहती है कि हमारे नौजवान अच्छी रोजी रोटी से जुड़े और हलाल। आमतौर पर क्या होता है कि एक आदमी की अच्छी नौकरी मिल जाती है, मुसलमान है, अच्छा कमाने लगता है, तो उससे जब आदमी मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन करते हैं इसके साथ, तो पूछते हैं कि भाई आप इस चीज़ को पा लिए हैं, तो कहने लगते हैं बड़ी इसके लिए मेहनत की, आपको क्या हम बताएं। उसके वालिद कहने लगते हैं मेरा बच्चा बहुत मेहनत किया, ठीक है, बहुत मेहनत किया, बड़ी मेहनत की, हम तो दिन को दिन रात को रात नहीं समझे, जो कुछ बोला उसको हम करके दे देंगे। यहाँ पे एक चीज जो छूट जा रही है, जो सबसे खतरनाक चीज है, कहना ही चाहिए था कि बच्चे की क्या है, सब नवाजने वाला, उसने नवाज दी, बात ही खत्म हो गई। हमको कोई जरूरत नहीं किसी को अपनी काबिलियत बताने की, अल्लाह आपकी काबिलियत लोगों के सामने जाहिर कर देगा।
एक वक्त आएगा तो लोग खुद ही आपकी बात करने लगेंगे, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या ये अकीदे का बिगाड़ है। मिलने चीजें कैसे मिली? अल्लाह की तरफ से मिली। हम मानते हैं कि आपने मेहनत की, तो कोई शक नहीं, लेकिन हम इसका सारा क्रेडिट अल्लाह को देंगे, है कि नहीं? आप सोच रहे हैं कि अगर अल्लाह हमें हमारी मदद ना करना चाहे, हम हमारे तरफ काबिलियत भरपूर है, तो क्या हम कामयाब हो जाएंगे? नहीं हो सकते। अल्लाह की मदद के बगैर तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो खुद मरने के बाद अपना गुस्ल नहीं दे सकते, इतने लाचार हैं, इतने लाचार हैं कि मर जाए तो अपना गुस्ल नहीं दे सकते, पैदा हुए तो अपना काम नहीं कर सकते, अगर माँ बाप ना करते तो कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं? ये लाचारी याद रखनी चाहिए, ये सब अल्लाह की तरफ से। तो हमेशा ये जुमला हमेशा बोले कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उस रब की तरफ से, उसने नवाजा, मेरा कोई कमाल नहीं, कोई मेरी हैसियत नहीं, ना देता तो नहीं मिलता, है ना? ये चीज आप लोग याद रखें हमेशा। इसमें हम लोग कमी करते हैं, इसमें अल्लाह नाराज हो जाता है। और नाराजगी कैसी होती है कि सिलसिला कई सालों तक चलते रहता है। अब वो आदमी को लगता है कि थोड़ी अपने बारे में थोड़ा बयान किया जाए, क्योंकि हम कुछ नेगेटिव चीजों को टेलीविजन या रील्स में देखते हैं। कोई बड़ा आदमी दुनिया का सक्सेस आदमी आता है इंटरव्यू में और अपने सक्सेस की पूरी दास्तान सुनाने लगता है कि हम लालटेन के नीचे, वो जो ट्यूब लाइट होती है, खंबा होता है सड़क पर, उसके नीचे पड़ गए थे, मेरे पास रहने की जगह नहीं थी, तो ये नहीं था। उस चीज से हम लोग क्या होते हैं, इंस्पायर हो गए, और हम भी अपनी कहानी में इस तरह की कहानी जोड़ देते हैं। जबकि एक सच्चा मुसलमान मोमिन क्या कहेगा कि सब मेरे रब का करम है, मेरे रब का फजल है। आप आगे कैसे बढ़े? अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल से बढ़े, अल्लाह के करम से बढ़े। ये वो जुमला है सामने वाले को भी हैबतनाक कर देगा। वजह क्या है कि अपनी कुछ बताना ही नहीं चाहता। हाँ, आप अपने बारे में बता सकते हैं आप स्ट्रगल कैसे की, वो आप टिप दे सकते हैं किसी को कि आप इस तरह पढ़े, उस तरह पढ़े, इस टाइम पढ़े, उस टाइम होमवर्क करें, ये बताने की दिक्कत है। कामयाबी का राज कौन है? अल्लाह का, हमारी कामयाबी का राज। यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या बयान किया? उन लोगों ने अल्लाह की रजामंदी की इत्तिबा की। सहाबा ने क्या देखा? अल्लाह खुश होगा इससे, और कुछ नहीं देखा। कि अभी हम जंग से लौट रहे, मेरे बच्चे खड़े होंगे, जो सहाबा हयात में थे, कम से कम गले लगा लेते उनको, माँ है रो रही, कम से कम मिल लेते। नहीं, ऑर्डर में ऑर्डर निकले। अल्लाह से बड़ा किसी को अहमियत नहीं करनी अपनी जिंदगी में। एक मुसलमान की जिंदगी में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी अहमियत क्या अगर कोई लायक है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, उसके बाद ही कोई, उससे पहले कोई, है ना? वल्लाहु ज़ु फज़लिन अज़ीम, अल्लाह बहुत बड़ा फजल वाला है। अब आगे अल्लाह ने बयान किया आयत नंबर 175 175 में, इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतानु युखव्विफु औलियाअहु। अरे जो कुछ था ये तो शैतान की तरफ से था, शैतान वर्गला रहा था। युखव्विफु औलियाअहु, वो अपने दोस्तों के जरिए से डरा रहा था। शैतान के जो चेले चपाटी होते हैं ना, उनके जरिए से वो डराता है। हमारे दिल में कि आपसे किसी चीज का डर पैदा हो जाता है और हम उस डर का सामना नहीं कर पाते और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये चीजें क्या है? शैतान है। आपको शैतान किसी चीज के बारे में इतना डरा देता है कि आप उसे पीछे हट जाते हैं। जब तो होना ही चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, उन तालीमात की रोशनी में हम उस दुआ के साथ जो दुआए मासूरा आगे बढ़े। शैतान तो दिन भर लगा रहेगा, साल भर लगा रहेगा, जिंदगी भर लगा रहेगा, तो पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन हम उसका सामना करें, हम उसे घबराए नहीं। उन्होंने कहा इन्ना ज़ालिम को शैतान की तरफ से है, युखव्विफु औलियाअहु, वो अपने साथियों से, अपने दोस्तों के लिए डरा रहा है। अल्लाह ने कहा फला तखाफू, तुम उससे मत डरो, फला तखाफूहुम, तुम उससे मत डरो, वखाफूनी, और मुझसे डरो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मुमिन हो। अल्लाह ने इन का शर्त क्यों लगाया? अरबी ग्रामर के अंदर लफ्ज़ इन जब इस्तेमाल होता है, कभी नाफिया मतलब नफी के लिए इस्तेमाल होता है और कभी वो शर्त के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ शर्त के तौर पे, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, यानी जमीन को झिझोड़ना हो। अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह से डरो, नहीं तो छोड़ो, क्या बात को, नहीं डर रहे तो मोमिन नहीं हो, बात खत्म। डर रहे तो मोमिन हो, नहीं डर तो मोमिन नहीं हो। ये शर्तिया है, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह कह रहा खाफूनी, मुझसे डरो, मेरे अलावा किसी से ना डरो। उसके बाद अल्लाह ने कहा आयत नंबर 176 176, वला यहज़ुनकल लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र, काफिर जो है अपने कुफ्र में बड़ी तेजी से बढ़ गए, तो ये चीज आपको गमज़दा ना करे। असल में ये आयत इसलिए नाजिल हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी कि सारे लोग मुसलमान हों। जैसे हम दावत का काम करते हैं तो एक मिस्टेक हम लोगों से भी हो जाती है,
हम दावत का काम कर रहे हैं 4-5 महीने से, वो हमारी बातें नहीं सुन रहा है, अइबे नहीं कर रहा है, तो हम तो दिल पे ले लेते हैं, काहे नहीं आ रहा, नहीं काहे नहीं आ रहा। नहीं, हमारा काम है पहुंचाना, अपने मुसलमान भाई के पास दीन की बात पहुंचाना। वो अमल करेगा नहीं करेगा, हिदायत मिलेगा नहीं मिलेगा, अल्लाह के पास, ये मामला अल्लाह का है, ये डिपार्टमेंट अल्लाह का, ये हमारा आपका नहीं है। हम में से कोई किसी को हिदायत नहीं दे सकता। आपको वाकई याद होगा कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा जो थे अबू तालिब, जब बिल्कुल मर्दुल मौत में चले गए, आखिरी स्टेज पर थे और मौत के दुहाने पर थे, बड़े बड़े मक्का के सरदार वहाँ मौजूद थे, उतबा शैबा अबू लहब वगैरह सब मौजूद थे। उस वक्त अल्लाह के रसूल ने जुमला कहा कि चचा जान आप सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह बोल दीजिए, मैं अल्लाह की बारगाह में आपकी सिफारिश करूँगा। किसने कहा था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा था ना। क्यों कहा था? क्योंकि अबू तालिब जो थे हज़रत अली के वालिद थे, अली बिन अबी तालिब आता है नाम, ये गरचे मुसलमान नाम हुए लेकिन उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मदद की। उस जमाने में जब शुरुआती दौर था, बड़ा खतरनाक दौर था कि अगर पता चल गया कि मुसलमान का साथी है, मुसलमान बन गया है, तो उसको सूली पे चढ़ा दिया जाता था, उसके घर वालों को हैरेसमेंट किया जाता था, परेशान किया जाता था। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे चचा एक बार कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह की बारगाह में आपकी सिफारिश करूंगा। आपको मालूम है कि अल्लाह ने एक आयत नाज़िल की, और वो आयत क्या थी? डांट फटकार वाली। अल्लाह ने डांट दिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सोचे इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ऐ नबी आप जिसे चाहे हिदायत नहीं दे सकते, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह जिसे चाहेगा हिदायत देगा। डांट दिया अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि क्या आप ड्रामा कर रहे हैं? हाँ, एक बार तो ला इलाहा इल्लल्लाह बोल दीजिए तो हम आपकी सिफारिश कर देगा। होते कौन है बोलने वाले? डांट के अल्लाह ताला ने इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, आप जिसे चाहे हिदायत नहीं, ये डिपार्टमेंट मेरा है, अल्लाह का है। वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देगा। सोचे तो हम कभी ना सोचे कि साल भर से 6 महीने से 8 महीने से हम दावत का काम कर रहे हैं, वो ये नहीं कर रहा, दर्स करवा रहे हैं, ये नहीं कर रहा है, अल्लाह हिदायत नहीं दे रहा। सीधी सी बात, नॉर्मल सी बात, अल्लाह हिदायत नहीं दे रहा है कि वो यहाँ पे आए, लेकिन हम अपना काम करेंगे ना। इसीलिए मेरा एक जाती काम ये रहता है कि हम कभी भी भीड़ की कमी या जाति को लेकर दिल पे नहीं लेते। एक आदमी अगर यहाँ बैठा रहेगा, यहाँ भी ना रहेगा, ऑनलाइन रहे, तो दर्स हम करेंगे इंशाअल्लाह। और ना मेरा कॉन्फिडेंस कभी कम होता है, कभी नहीं, शुरू से मेरा मामला है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तबलीग की, कितने साल? 950 साल। कितने लोग मुसलमान हुए? 83। 950 साल तबलीग पर 83 लोग सिर्फ मुसलमान हुए। तो क्या नूह अलैहिस्सलाम की गलती थी? हम ये कहे कि उन्होंने सही से काम नहीं किया हो? नहीं, वो नबी थे, वो नबी थे। क्या है? हिदायत अल्लाह के हाथ में, ये हम भी जानकर आप भी जान लीजिए। तौफीक अल्लाह नहीं दे रहा, सीधी बात। तौफीक अल्लाह देगा तो सारी दुनिया को छोड़कर आदमी दिन का काम करेगा। तौफीक नहीं मिल रहा है, और तौफीक हम और आप दे भी नहीं सकते। ये काम अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। अल्लाह ने बयान किया, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी सारे लोग मुसलमान हो गए। यहाँ अल्लाह ने बयान किया वल्ला यहज़ुनका अल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र, कुफ्र में तेजी से जो लोग जा रहे थे उससे कहीं आप गमज़दा ना हो जाए। नबी आप गमज़दा ना हो जाए। इन्नहु ला यज़ुरुल्लाह शैयन, अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह के नबी थे, रहमतुल लिल आलमीन थे। आप चाहते थे कि सारे के सारे मक्का और मदीना के लोग मुसलमान बन जाए। कोई भी नबी चाहेगा वही काम करने आए दुनिया के अंदर, दाऊद तबलीग का काम करने आए, कुरान के ऊपर नाज़िल किया गया। आप नबी कायनात बना के गए, नबी रहमत बना कर दुनिया में भेजे गए, तो आप जाए तो चाहेंगे कि सारे लोग जन्नत में जाएं, और जन्नत में जाने के मुसलमान होना होगा। ये आपकी इच्छा थी, आपकी ख्वाहिश थी। अल्लाह ने कहा, उनको तसल्ली दिया कि इन्नहु ला यज़ुरुल्लाह शैयन, पूरी कायनात एक हो जाए तो अल्लाह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पूरी कायनात एक हो जाए तो अल्लाह को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐ नबी आप परेशान मत हो, आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद अल्लाह ने कहा युरीदुल्लाहु अल्ला यजअल लहुम हज़्ज़न फिल आखिरह, अल्लाह का तो ये इरादा है कि ऐसे लोग जो कुफ्र में चले जा रहे हैं उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, आखिरत में कोई हिस्सेदारी नहीं, कोई भागीदारी नहीं, कोई उनके लिए इंतजामात नहीं आखिरत के अंदर। यानी दुनिया उनकी आखिरत है, दुनिया उनकी जन्नत है। जो लोग कुफ्र की हालत में है तो उनके लिए जन्नत क्या है? दुनिया है, दुनिया ही उनके लिए जन्नत है। दुनिया से जाने के बाद उनकी कहानी खत्म, मरे और कहाँ चले गए? जहन्नम में चले गए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नबी आप इस कदर टेंशन ना लें, इतना ना सोचिए आप, क्योंकि उनके लिए आखिरत में कुछ भी हिस्सा नहीं। फिर आगे अल्लाह ने कहा
वल्लहुम अज़ाबुन अज़ीम, हिस्सा भी नहीं है और दर्दनाक अज़ाब है। हिस्सा मतलब कुछ अच्छा ही नहीं मिलेगा, कुछ आराम नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? अज़ाबुन अज़ीम, बहुत बड़ा अज़ाब है। कितना बड़ा अज़ाब है, क्या अज़ाब है। आप जहन्नम के हन्ना के अपन है रोटे खड़े हो जाएंगे। जहन्नम, जहन्नम से एक बात याद आई कि देखिए अल्लाह ने दो चीज़ों को बनाया, एक जन्नत और एक जहन्नम। जहन्नम के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि जहन्नम का इतलाक, जन्नत का इतलाक किन पर होगा? इंसान और जिन्नात के ऊपर। ये कानून दो लोगों के ऊपर होगा, या तो इंसान जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में। हम ही में से कुछ लोग जन्नत या कुछ अपने आमाल की बदौलत, और एक जिन्नात है। फरिश्ते वो मखलूक हैं जिनके ऊपर ये कानून नाफिज नहीं होता। फरिश्तों के बारे में है तो कभी अल्लाह की नाफरमानी करती ही नहीं। इसीलिए लोग बातचीत में बोलचाल में कहते हैं कि गलती ना करेंगे तो फरिश्ता नहीं हो जाएंगे। क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि फरिश्ते गलती नहीं, गलती से भी गलती नहीं करते, गलती से भी गलती नहीं करते। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोगों से ज्यादा फरिश्ते करते हैं। जहन्नम में नहीं जाएंगे, उन लोगों के लिए जहन्नम है ही नहीं। हम लोगों से ज्यादा फरिश्ते अल्लाह से डरते हैं, हम लोगों से ज्यादा। जबकि ये चीज तो हम लोगों के अंदर होनी चाहिए ना, क्योंकि जन्नत जहन्नम हम लोगों के लिए बनाई गई है। अल्लाह जानता है कि हमारे अमाल कबूल हो रहे कि नहीं, और कितना करने की अच्छा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। लेकिन हम बेफिक्र आराम से रहे। हमें लग रहा है कि मुसलमान घर में पैदा हो गए, पैदा हुए तो अजान होगी, मरेंगे जनाजा हो जाएगा तो जनते में जाएंगे। फरिश्तों के ऊपर जन्नत जहन्नम पे इतलाक नहीं है, लेकिन फरिश्ते हम लोगों से ज्यादा अल्लाह से डरते हैं। एक मतलब जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल के पास आए, वही लेकर आए तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जिब्रील आपसे एक सवाल है। जिब्रील अलैहिस्सलाम भी फरिश्ते हैं, हाँ, वो वही लेकर वही आते हैं। आपसे एक सवाल है। क्या सवाल है? पूछिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने मीकाईल अलैहिस्सलाम को कभी हंसते हुए नहीं देखा। आप तो हंसते भी हैं, मुस्कुराते तो उनको नहीं देखा। क्यों? वो भी तो फरिश्ते हैं, अल्लाह की खिदमत करते हैं, काम में लगे हुए मामूर है, कभी हंसते हुए नहीं देखो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब से अल्लाह ने जहन्नम को पैदा किया और जब से मीकाईल अलैहिस्सलाम ने आंख से देखा, उनकी हंसी गायब, इतना दर्दनाक जहन्नम है। जबकि फरिश्ते जहन्नम में नहीं जाएंगे। जहन्नम और जन्नत का इतलाक हम इंसान और जिन्नात के ऊपर। सोचे कितना खौफनाक जहन्नम होगा कि मीकाईल अलैहिस्सलाम की हंसी गायब हो जहन्नम देखकर। यहाँ अल्लाह ने कहा ना वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, इतना बड़ा अज़ाब, ऐसा अज़ाब होगा कि मीकाईल अलैहिस्सलाम की हंसी गायब होगी जहन्नम देखकर। और हम कितने बेफिक्र हैं? सोचो क्या कर रहे हैं। कभी सोच रहे हैं कि अपने अमाल कितना अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, क्या अच्छे काम कर सकते हैं, कितना खैर का काम हम अल्लाह से ले लें। कभी इस पर कोई प्लानिंग है? कभी दिन में कभी सोचते हैं, रात में सोचते हैं, दिन रात इस तरह गुजर जाए। फरिश्ते की हंसी गायब जहन्नम देखकर, और हम बिल्कुल बेफिक्र है। तो हमें अल्लाह से डरने की जरूरत है। कब अल्लाह हमें अपने पास बुला ले कोई जानता नहीं। ये हम अब गफलत में अपने आप को वक्त दिए हुए हैं कि अभी तो हम 30-35 के 70 तक जाएंगे। अल्लाह को मालूम कहाँ चल जाएंगे, अल्लाह को मालूम है। अल्लाह हम सबको लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन। आगे अल्लाह ने कहा आयत नंबर 177 177 में अल्लाह ने कहा इन्नल लज़ीना इश्तरुल कुफ्र बिल ईमान, बेशक जिन लोगों ने ईमान के बदले कुफ्र को खरीद लिया, जिन लोगों ने ईमान के बदले कुफ्र को खरीद लिया, लन यज़ुरुल्लाह शैअन, वो लोग भी अल्लाह कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो लोग भी अल्लाह ताला का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो लोग अज़ाबुल अलीम, ऐसे लोगों को दर्दनाक है। देखिए दो कैटेगरी बयान हुआ। ऊपर में एक कैटेगरी बयान हुआ कि जो लोग कुफ्र में बहुत ज्यादा बढ़ गए, यानी काफिर ही वो मुसलमान नहीं है, कुफ्र में है, आगे बढ़ गए, अल्लाह कह रहा है वो भी अल्लाह को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते और उनके लिए बड़ा अजाब है। लेकिन जो लोगों ने अपने ईमान को बेच दिया कुफ्र के बदले, आजकल बहुत ऐसा हो रहा है, खास हमारी बहनें खास ऐसा हो रहा है, मुसलमान है गैर मुस्लिम से निकाह कर ले रही है, ईमान से बाहर हो जा रही है। और ये सब ड्रामे हैं, फिल्मी चीजें हैं कि हम अपना फॉलो करेंगे, अपना फॉलो कीजिए। इस्लाम में इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये टीवी की चीजें हैं कि हम अगर गैर मुस्लिम लड़के से शादी भी करते हैं तो हमको इजाजत देगा कि तुम इस्लाम को फॉलो करो, हम अपने अपने दिन को फॉलो करेंगे और इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। बेकार घटिया चीजें जी, ये चीजें कुरान और हदीस में नहीं है। ये दुनिया की बनावटी चीजें जिसको हम जिससे इंस्पायर हो रहे हैं, मुतासिर हो रहे हैं, सोच रहे हैं ऐसा भी हो सकता है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नामुमकिन चीजें हैं। इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हमारी बहनें गुमराह है अल्लाह उनको हिदायत दे, निजात और कामयाबी। ईमान की हालत में ईमान नहीं, कहानी खत्म, कहानी खत्म।
अब देखिए अल्लाह ने बयान किया कि जिन लोगों ने अपने ईमान को कुफ्र से बेच दिया, इश्तरी के माना होता है बेचना, ये लफ्ज इस्तेमाल किया कुरान के अंदर, बेचना है मतलब हमें लगा कि वो धर्म सही है तो इसको हम हटा दी, मतलब बेच दी, उसको खरीद ली, इसको बेच दी, है ना। अल्लाह कह रहा है ये लोग भी अल्लाह को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बड़े बड़े लोग कुफ्र के हाल में उससे क्या होगा, बड़ी बड़ी हस्तियां कुफ्र में चले उससे क्या होगा, इस पूरी दुनिया को तो बनाने वाला अल्लाह ताला है, और दुनिया के सारे लोग अल्लाह की उंगली पर नाच रहे हैं, तो जिसको जब चाहे मौत दे, है कि नहीं। अल्लाह ने क्या कहा ऐसे लोगों के बारे में जो मुर्तद हो जाते हैं, यानी इस्लाम छोड़कर काफिर बन जाते हैं, अल्लाह ने इनके लिए बड़ा अजाब नहीं कहा, दर्दनाक अजाब, अज़ाबुन अलीम का, अज़ाबुन अलीम उर्दू में भी अलग इस्तेमाल होता है अलीफ लाम मीम दर्द की, और अरबी में अलीम दर्दनाक, दर्दनाक अजाब है ऐसे लोगों के लिए जो उन्होंने अपने ईमान को कुफ्र से बेच दिया। आगे अल्लाह ने कहा, ये देखिए ये बड़ी बेहतरीन आयत है, आयत नंबर 178 178, अल्लाह ने कहा वला यहसबन्न लदीना कफरू इन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअनफुसिहिम, काफिर ये गुमान ना करें कि जो ढील हमने उनको दे रखी है उनके लिए बेहतर है, काफिर ये गुमान ना करें कि जो ढील हमने दे रखी है वो बेहतर है। अब एक चीज जो हमारे जहन में है, जैसे हम हिंदुस्तान में रखते हैं तो मुख्तलिफ मजहब के लोग यहाँ पे रहते हैं, हिंदू धर्म है, ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म, बहुत से धर्म यहाँ पे। अब कभी हम सोचते हैं कि देखो हम मुसलमान हैं, अल्लाह को मानते हैं, नमाज़ें पढ़ते, रोजा रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, और हम कितना गरीब है, वो आदमी वो काफिर है, इस्लाम को मानते हैं, उसको करोड़ों अरबों का मालिक है ना, सोचते हैं कभी कभी तो अल्लाह ही को नहीं मानता, कुछ काम ही नहीं करता, दीन में ही ये नहीं है, खैर क्या करेगा। देखो कितने पैसे है, बिलियनर है, मिलियनर है, क्या क्या है, तो इनके बारे में सब बातें आ जाती हैं। अल्लाह ने उस जहनियत को साफ करने के लिए आयत नाज़िल किया, बोला यह सबन्नल लदीना कफरू, काफिर ये गुमान ना करे, इन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअनफुसिहिम, कि हमने जो उनको ढील दे रखी है वो उनके लिए बेहतर है, ये ना सोचे, मतलब अल्लाह ढील दिया है, काफिरों को ढील दिया, और कमाओ, 1 करोड़ है 10 करोड़ हो जाए, 100 करोड़ हो जाए, 1000 करोड़ हो जाए, कमाते हो, ढील अल्लाह दिया है। काफिर सोचता है कि ये बेहतर है मेरे लिए, अल्लाह ने नक्शा खींचा यहाँ पे। आगे अल्लाह ने कहा इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादु इस्मन, अल्लाह ने उनको इसलिए ढील दे दी ताकि गुनाह में बढ़ जाए। अल्लाह ने क्यों ढील दिया, गुनाह में बढ़ जाए, गुनाह में बढ़ा रहा। गर्ची आयत काफिरों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसके मुखातब हम मुसलमान हैं। अब मुसलमान भी ना सोचते हैं कि हम मुसलमान को जन्नत में भी करेंगे, ये ना सोचते हैं, चाहे नमाज पढ़े चाहे ना पढ़े, चाहे सुन्नत में चले चाहे ना चले, चाहे कुछ चीजों को माने कुछ चीजों को ना माने। अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करें तो बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी कमियां, उस कमियों को भी तलाश करते हैं। हम अपने आप को एक सर्टिफिकेट दिए हुए हैं कि हम नमाजी तो है, रोजा रोजा अदा करते हैं, और अल्लाह ने पैसा दिया तो हज उमरा भी कर लेंगे, कुर्बानी तो हर साल ही करते हैं, तो यानी अब हम क्या है एकदम पक्के सच्चे मुसलमान हैं। आज बेशतर हमारे नौजवान भाई देखिए पूजा के बाजारों में देखें मुसलमानों को, दीन नहीं है उनके अंदर, तो क्या हुआ चल गया, हम तो मुसलमान हैं, शर्म भी नहीं है, अफसोस भी है। क्या वो चले गए तो, क्या वो चले गए तो जहर है, थोड़ा सा पी लीजिए, क्या थोड़ा पी लीजिएगा तो पी लीजिए, थोड़ा सा जहर है ना, कोई कहे कि 1 चम्मच पी लीजिए, क्या होगा पी लेंगे तो नहीं नहीं जहर है, मर जाएगा। अरे आपको 1 गिलास पीने के लिए कौन कह रहा है, 1 चम्मच ही पी लीजिए। दीन नहीं है हमारे अंदर, ना माँ बाप उस पर कभी फोकस करते कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, है कि नहीं, ये तो प्रैक्टिकल बात है। लेकिन हम अपने आप को सर्टिफिकेट दिए हुए कि हम मुसलमान हैं तो हम जन्नत में जाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। ये गलत तसव्वुर और गलत सोच, ये गलत सोच है। अगर हमारे अमाल दुरुस्त ना रहे, याद रखें मेरे भाइयों, अल्लाह हमें जहन्नम में डालेगा। एक आयत पढ़े, वैलुल लिल मुसल्लीन, हलाकत है नमाजियों की, कुरान में कहा वैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजियों की हलाकत कैसे हो जाएगी, नमाज तो अच्छी चीज है, नमाज तो अच्छी चीज है, तो फिर नमाज पढ़ने वाले के लिए हलाकत कैसे होगी, ये तो अजीब अकल से बाहर बात है। और कुरान में अल्लाह ने कहा कि वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम फी अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों में सुस्ती बरतते हैं। नमाज सुस्ती बरतने वाली चीज नहीं है। रमजान आया, रमजान पढ़े, शव्वाल पढ़े, बकरीद तक टांग के ले गए, उसके बाद खत्म, फिर रमजान आएगा, शाबान आएगा, फिर रमजान शुरू कर देंगे, ये सुस्ती है कि नहीं बताइए। ऐसे नमाजियों के बारे में अल्लाह ने कहा कि वो जहन्नम में जाएंगे, वह जहन्नम में एक सबसे निचले तबके में घाटी, उसको वह कहा जाए।
लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया वैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए हलाकत है। नमाज कौन पढ़ता है? मुसलमान की गैर मुस्लिम? मुसलमान ने पढ़ता है। मुसलमान के बारे में अल्लाह ने कहा तो जहन्नम में जाएगा। सोचिए, कुरान के अंदर कुरान झूठा है? मुसलमान के बारे में अल्लाह करेगा मुसलमान जहन्नम में जाएगा, और हम जिस तरह के मुसलमान हैं ये सोचे क्या होगा, हम चलेगा तरह मेला होंगे तो जन्नत में ये भी करेंगे। नहीं मेरे भाई, हम धोखे में हैं, हम धोखे में हैं। मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की शक्ल सूरत और उसके तौर तरीके को अपनाता है वो उसी में से, वो भी वही है, मुसलमान नहीं हो सकता। जिस कौम के त्योहार में हम जा रहे हैं हम वही है, हम मुसलमान नहीं। सोचिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी बात बयान की। यहाँ पे अल्लाह ने कहा काफिर ये ना सोचे कि हमने जो ढील दे दी वो बेहतर है। हमने उनको ढील इसलिए दिया ताकि वो गुनाह में बढ़ जाए, तो गुनाह में बढ़ जाए, गुनाह इतने ज्यादा हो जाए कि बख्शिश का सवाल पैदा नहीं, गुनाह में बढ़ा रहा रब्बुल आलमीन। इसीलिए अगर हम कोई गुनाह किए और हमारी पकड़ ना हुई, खुश होने की जरूरत नहीं, बच गए, कोई नहीं जाना, कोई किसी को पता नहीं चला, काम तमाम भी हो गया, ये कभी ना सोचे। ये ढील बेहतर नहीं है। जानते हैं कि बच गए, अल्लाह गुनाह में बढ़ा रहा है, और पढ़ो, तुम 10 बार और करो ना, तुमको और छुपा देंगे, 10 से 20 करवा देंगे, 100 तक करवा देंगे। अब आओ मेरे पास, तुम्हारे पास अच्छा यही नहीं है, गुनाह ही गुनाह, जाओ जाते। ये लॉजिक याद रखिए, एक क्राइम करके, एक जुर्म करके, एक गुनाह करके अगर हम बच गए तो ये हंसने के लिए सोचने की बात है, सोचने की बात है। अल्लाह का खौफ नहीं है। अल्लाह क्या करेगा, बोलेगा अब तो और बचोगे तुम। एक आदमी कर देखा है ना, तो कोई नहीं देखेगा, परिंदों नहीं देखेगा, तुम करो, अल्लाह देख रहे हैं। यहाँ वही मैंने कहा कि हमने जो ढील दी है ताकि गुनाह में बढ़ जाए, वल्लाहु अज़ाबुम मुहीन, और ऐसे लोगों के लिए रुसवा कुन अजाब, ऐसा अजाब की रुसवाई होगी, जिल्लत होगी, तहकीर होगी, तजलील होगी, ये चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा। फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा आयत नंबर 179 179 में, मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि, जिस हाल पर मोमिन है अल्लाह उस हाल पर इनको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा उस हाल पर। हत्ता यमीज़ल खबीसा मिन अत-तय्यबी, जब तक के पाक और नापाक को अलग ना करें। समझ में क्या अल्लाह बोलना चाह रहे हैं? हम लोग ईमान वाले हैं कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ईमान वाले हैं, तभी तो मोमिन कहलाते हैं। अल्लाह पर ईमान है, रसूल पर ईमान है, कुरान पर ईमान है, फरिश्तों पर ईमान है। अल्लाह कह रहा है ईमान है तो क्या हुआ, तुम उसी हाल पे छोड़ देंगे, जन्नत में चल जाओ? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं रहने देंगे। अल्लाह कह रहा है हम तुमको ऐसी ऐसी आजमाइश में डालेंगे ताकि पता चले कि तुम नापाक हो कि पाक हो। ईमान, अभी हम लोग नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, किसी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है हमें नहीं जाता, हम जानते हैं बहुत से लोग परेशान हैं, अंदरूनी तौर पर बहुत परेशान है। अल्लाह सभी परेशानी को आसानी बना। एक आदमी नॉर्मल है, मुसलमान है, नॉर्मल है, कुछ कोई दिक्कत नहीं, ना कमाने की, ना खाने की, ना रहने की, ना बैठने की, ना उठने की, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उससे पूछिए कि आप अल्लाह पर ईमान लाते हैं? जी हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, नबी पर ईमान है, कुरान पर ईमान है, आखिरत पर ईमान है। अल्लाह उसकी जिंदगी में जवान बेटे की मौत देते। आप पूछिए आपको अल्लाह पे ईमान है? अब आजमाइश में अब बताइए ईमान है अल्लाह पे? वही अल्लाह चेक करेगा। तो बुरा भला कह रहा है क्या अल्लाह को? अल्लाह मेरा बेटा को छीन लिया, क्या हो गया? अल्लाह ताला को सब तो ठीक ही है, अल्लाह मेरे बेटे को आजाद दे दिया, हमको मेरे नूर नजर को छीन लिया, ये कर लिया। यही टेस्ट नॉर्मल लाइफ में सब कुछ बोल देगा कि हम अल्लाह पे ईमान लाते हैं, परेशान अल्लाह कर देगा, 10 लाख के कर्जे में डाल देगा। अब बताओ अल्लाह पे भरोसा है? नबी पर भरोसा है? ईमान है? अब बताओ, अब देखिए तुम्हारे अमाल बतलाएंगे तुम अल्लाह पे कितना भरोसा है कि नहीं। ये अल्लाह वही बात यहाँ बयान कर रहा है कि जिस हाल पर तुम मोमिन हो अल्लाह उस हाल पर तुमको नहीं छोड़ेगा। हत्ता यमीज़ल खबीसा मिन अत-तय्यिबी, यमीज़ कहते ना, मतलब उर्दू में इसमें तमीज़ करना कि क्या अच्छा है क्या बुरा, की तमीज़ होनी चाहिए। तो यमी का माता यमी के माने होता है परखना, जांचना। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जांच ले कि खबीस नापाक को कहते मिन अत-तय्यिब, और पाक को कहते हैं मतलब पाक। जांच ले कि तुम में से नापाक कौन है, पाक कौन है। वमा कान अल्लाहु लियुतलियकुम अलल गैब, और ऐसा भी नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको गैब की खबर दे, ऐसा भी नहीं है। वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रुसूलिही मन यशा, और रसूलों में जिसे चाहता अल्लाह चुन लेता है, मुंतखब कर लेता है। फआमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, रसूल की जमा की रसूल, रा पे भी पेश होगा, सीन पे भी पेश होगा। अरबी में रसूल के पे रा पे जबर होता है, रसूल वाहिद, रसूल जमा अरबी के अंदर। फआमिनु बिल्लाहि, तो बस तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, रसूली और उसके तमाम रसूलों पर ईमान लाओ। वइन तुमिनु, अगर तुम ईमान लाओ, फिर इन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, शर्तिया है, शर्त अल्लाह लगा दी। वइन तुमिनु, अगर तुम ईमान लाओ, व तत्तकू, और तुम तकवा इख्तियार करो, परहेजगारी इख्तियार करो,
फलकुम अजरुन अजीब, तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है। फिर तकवा की बात आगे भूलते थे। पूरे दर्स में शुरुआत जहाँ से हुई थी, खात्मा वहीं पे हो रहा है। तकवा इंपॉर्टेंट चीज है। सिर्फ दिल में बैठा लीजिए कि अल्लाह से डरना है, आपसे कोई बुराई नहीं है। खाना खाइए, अल्लाह से डरना है तो दाहिने हाथ से खाइए। पानी पीजिए, अल्लाह से डरना है तो बैठ कर पानी पीजिए। 3 सांसें पीजिए। हर चीज में डर पैदा कीजिए, उसी को तकवा कहते हैं। तो हमसे कोई गुनाह के काम नहीं होगी, बुराई नहीं। दर्स का इख्तिताम होता है। अगर कोई सवाल हो ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे आपने कहा कि इन जैसे सर्दियाँ होता है और एकदम कहाँ हो जाए एक नहीं के माना नफी जिसको बोलते हैं, कहीं कहीं पर नहीं के माना की इस्तेमाल होता है। मतलब आपने कहा कि जैसे मुसलमान लोग जो है वो पूजा वगैरह घूमने चले जा रहे हैं या फिर किसी दूसरे मजहब में चले जा रहे हैं, क्या सर ये ऐसा नहीं है कि मतलब तौहीद के इम्पोर्टेंस पे हमारा चाहे माशरा हो या चाहे उस पर कम जोर दिया गया है, इसके पीछे वजह ये तो आयत नजर लिख के मुझे दे देंगे यहाँ तक पूरा एक भूल है। हाँ हम लिखे इनको भेज देते हैं तो फिर बंद पहले क्या था ना, तैयारी कर यहाँ से यहाँ तो दाग लगा रहता है। अब हम भी भूल जाते हैं, खैर कोई बड़ा मसला नहीं। देखिए सवाल ये है कि जो भी मुसलमान भाई गैरों के त्यौहार, किसी एक को बोल के क्यों शर्मिंदा करें। कोई भी गैर का त्यौहार हो, क्रिसमस का मौका हो या फिर इस तरह का पूजा वगैरह का त्यौहार हो, तो जो मुसलमान जा रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि तौहीद के मुनाफिक कोई काम हो रहा है। यही सवाल है ना, अपोजिट काम हो रहा है। बिल्कुल देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक मुसलमान की अपनी कोई मर्जी नहीं होती। हमें तो अल्लाह ने मुसलमान बनाया है तो अपनी मर्जी के लिए नहीं बनाया है। हम पाबंद है किताब सुन्नत की, हम किताब सुन्नत के पाबंद है। पाबंदी से करेंगे वो काम तो अल्लाह से राजी, नहीं करेंगे तो अल्लाह से ना करो। जैसा कि हम सब बैठे हुए हैं, करीब करीब घंटा भर क्लास में बैठे हुए हैं। अब ईशा की अजान हो गई तो ईशा की नमाज पढ़ने के लिए पढ़नी है, लेकिन मन एकदम सुस्त पड़ा हुआ है, मन नहीं करा जाने का। तो अपनी मन को देखेंगे कि अल्लाह के अहकाम को देखेंगे। हम पाबंद अल्लाह है, अपने पाबंद नहीं है। अगर अपनी बात आ जाए तो हमारी तबीयत नहीं चाह रही है ना। अब ठंडी का मौसम आ रहा है, जाड़े का मौसम। अब जाड़े में बिस्तर छोड़ के फजर की नमाज पढ़ना, हमारी क्या तबीयत है कि नहीं, हम रजाई से नहीं निकलेंगे, हम कंबल से नहीं निकलेंगे। और अल्लाह क्या चाहता है ना। तो हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं है। उसी तरीके से इस तरह का त्यौहार बड़ी रंगीन और सजावट होती है तो दिल लुभ जाता है कि हम भी चले जाता भाई, तो घूम फिर ले, इंटरटेनमेंट हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि इंटरटेनमेंट हो जाएगा, लेकिन शरीयत इसके बारे में क्या कहती है, इंपॉर्टेंट है। हमारे कहने से क्या है ना, हमारे कहने से क्या हो, कहना है कि शरीयत क्या चाहती है। शरीयत हो सकता है कि अल्लाह ताला ने जानबूझकर हमको इस मुल्क में पैदा किया ताकि इन चीजों से आजमाए हमारे ईमान को, ये नहीं हो सकता है। लेकिन हम बहानेबाजी ना करें, एक्सक्यूज ना दें कि नहीं देखिए अब एक जगह रहना तो कर नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर रहते थे, सारा मक्का बुत परस्ती में था। क्या आपने समझौता किया? आपको याद है ना, यही अबू तालिब की जो किस्सा मैंने बयान किया, मक्का के बड़े बड़े सरदारान अबू तालिब के पास पहुंच गए और कहे कि देखो तुम्हारा भतीजा बहुत तंग करे, तंगी नहीं कर रहा, हमारे माबूदों को बुरा भला कह रहा है, ये तो बुत है, मिट्टी है, पुतला है, टूट जाएगा, गिर जाएगा, बोलता नहीं है, सुनता नहीं है, कैसे फायदा पहुंचाएगा, किसे नुकसान पहुंचाएगा, तुम उसको समझा दो। क्योंकि आपका खानदान बड़ा आला खानदान था, उसका भी एक खौफ था और अबू तालिब की भी एक बहुत बड़ी मतलब पकड़ थी मक्के के अंदर। उसको समझाओ और उसको बोलो कि अगर वो चाहता है मालो दौलत हम कितना दे देंगे कि उसके साथ पूछते खाएंगे। अगर वो चाहता है तो मक्का की जो सबसे खूबसूरत लड़की होगी उससे शादी करवा देंगे, उससे बोलो। तो अबू तालिब ने अपने भतीजों को बुलाया और कहा कि बेटा क्या ये सब कर रहे हो तुम नहीं जानते इन लोगों की ताकत को। अरे ये अभी बर्दाश्त करे इसलिए मुझको देख कर मुझे डर है, खौफ है कि तुम कोई बड़ी मुसीबत ना चले जाओ। हाँ ठीक है, वो ऑफर भी कर रहा है, तुम कहो तो माल दौलत मिल जाएगी, लड़की मिल जाएगी अच्छी बीवी के तौर पर। अल्लाह के नबी ने कहा कि देखिए अगर मेरे एक हाथ में सूरज और एक हाथ में चांद भी दे दे तो मैं अपने दिल से नहीं करूंगा। आपने समझौता किया, कर सकते थे किस सिचुएशन पर, पूरा का पूरा मक्का कुफर में था, उस वक्त आपने मुखालफत की। आज तो अलहमदुलिल्लाह में बहुत मुसलमान है, नियामतपुर में, उल्टी में, आसनसोल में, कलकत्ता में कभी है मुसलमानों की। तो फिर हम क्यों भटक जा रहे हैं इस तरफ? ऐसा तो नहीं कि हम कमजोर है, नहीं जाएंगे तो हमको मार देंगे, नहीं आपको आना ही होगा। असल में हम खुद ही मौका देंगे। तो इससे अकायद का भी टकराव हो, क्योंकि ये जो पूजा जो है ये एक मूर्ति पूजी जाती है, बुत पूजे जाते है ना, बुत पूजे जाते हैं। वो उनका अकीदा है, वो उनका त्यौहार है, हम तो खराब नहीं बोल रहे हैं। वो अपने त्यौहार में रहे, अपने अकायद से जुड़े रहे, है ना।
हम तो सबकी हिदायत की दुआ करें। बात क्या अपने लोगों की हो रही, उनके त्योहार में जा रहे, आप कह रहे कि नहीं हम मेला मिस्त्री गए, तो मेला लगा किस लिए? समझा रहे ना, छत ढलाई होने वाला है, तो सेंटरिंग हुआ है ना, सेंटरिंग हुआ क्यों हुआ है? छत पे ढालने के लिए हुआ है, क्या इसी झूठों को सेंटरिंग कर दिया? बस वही बात है। तो अपने अकीदे की खैर बनाए, क्या पता अल्लाह ताला हमको मौत दे दिया, इस हालत में मर गए हम, नहीं हो सकता। तो हम हमेशा अपने अकीदे की फिक्र करें, दुनिया की रौनक से बचे, आखिरत की फिक्र करें। और सूरह आला पढ़े, बल तू से हयात दुनिया, बल्कि तुमको दुनिया की जिंदगी मुतासिर करती है, जबकि वल आखिरत तो खैर व अबका, आखिरत की जिंदगी बेहतर है और हमेशा हमेशा बाकी रहने वाली। दरस के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम इल आलमीन तो हमारी हाजिरी को, हमारी नीतियों को कबूल फरमा ले। परवरदिगार से दुआ है कि हमें से जो भी मुसलमान भाई बहन जो भी परेशान हाल है, किसी न किसी परेशानी में डूबे हुए हैं, परवरदिगार से उनके दिलों का हाल जानता है, उनके लिए आसानी पैदा फरमा। आमीन व रवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।